بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعن اللہ تعالی علی اعداء اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم اور پوری دنیا میں رہنے والے وہ مومنین و مومنات جو اس وقت ولایت علی 313 چینل سے آج کی اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، میری دعا ہے کہ مخدومہ عالمیان شہزادی کونین آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے، اور میری شہزادی، میری آقازادی سرکار حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لہو کا واسطہ اور خون کے واسطے سے ہم دعا گو ہیں کہ اس چینل کے روح رواں جناب سید انتصار شاہ صاحب کے رزق میں، معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے، میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور میرا مولا جتنے بھی بیمار ہیں اور بالخصوص جناب سبطین صاحب جو علیل ہیں، میں نجف میں امیر المومنین کی دہلیز پہ بیٹھ کے دعا گو ہوں کہ میرا مولا انہیں جلد از جلد صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، انہیں تیزی کے ساتھ خوب صحت فرمائے، اور میرا مولا پوری دنیا میں رہنے والے مومنین و مومنات کو اذن عطا فرمائے کہ وہ کربلا اور نجف کی اور سامرا و کاظمین کی زیارت سے مشرف ہو سکے۔ سلسلہ عزاداری پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سامعین و ناظرین جو دور دراز علاقوں میں مجالس میں شرکت نہیں کر پا رہے، ہم ان کو اپنی ان نشستوں کے ذریعے وہ فضائل و مصائب اہل بیت محمد جو ہماری مجالس کا خاصہ ہیں وہ ان تک پہنچا سکیں۔ سلسلہ گفتگو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یقیناً یہ امامت کی نظر میں تو وعدہ پروردگار تھا، اور یہ عالم الست میں یہ روحوں کا عہد تھا، اور یہ وعدہ تھا کریم کربلا کا اپنے خالق سے کہ بعد از انبیاء وہ خدا کی اس دین کے تحفظ کے لیے اور اس دین کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اپنے خان وعدہ کے ساتھ پیش کریں گے۔ لیکن ہم ان مجالس میں مسلسل یہ سفر کر رہے ہیں کہ آخر تاریخی اعتبار سے صرف اور صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ایک بد کردار اور اس دور کا مسلمانوں کا خلیفہ جس کا نام یزید ابن معاویہ تھا، صرف اسے قصوروار ٹھہرا کر باقی تمام لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اپنی مسلسل مجالس میں قتل حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ تمام وجوہات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آخر یہ قتل کیوں، کیسے اور کس طرح سے ہوا۔ اب ستم ظریفی تاریخ کی یہ ہے کہ اس قتل میں صرف اور صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں صرف یزید ہی کو قصوروار ٹھہرایا گیا کہ یزید مجرم تھا، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یزید کو یزید بنانے والا کون تھا، ہمیں یہ بتایا جائے کہ آخر یزید میں اتنی جرت کیسے آئی کہ اس نے اپنے ہی جس کا کلمہ پڑھتا تھا اپنے ہی اس نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہاں بات ہم پہنچاتے پہنچاتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ امیر المومنین کی حکومت کو کیسے گرانے کی کوشش کی گئی، کیسے کیسے منافقین نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی حکومت اور ان کے اقتدار کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں باہر صورت اپنی مجالس میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حاکمیت صرف امام کی ہوتی ہے،
حکومت صرف امام کی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مولا امیر المومنین کو خلافت سے دور رکھا گیا تو شاید امیر المومنین کے اختیارات میں کمی آ گئی، تو امیر المومنین کا اختیار خدا آیہ ولایت میں بیان کر چکا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اور طرفین نے یہ مانا ہے کہ یہ آیہ ولایت میں جو تیسری ولایت ہے یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ تو یہاں خدا نے جب قرآن میں ولایت کا ذکر کیا تو وہاں اپنی ولایت کا ذکر بھی کیا، وہاں رسول کی ولایت کا ذکر بھی کیا، وہاں علی کی ولایت کا ذکر بھی کیا ہے۔ علی کی ولایت اتنی معتبر ہے کہ جب اللہ علی کی ولایت کی بات کرتا ہے تو خود خدا اپنے کو اس ولایت میں شریک بنا لیتا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ علی، کیا بات۔ جب بھی خدا امیر المومنین کی ولایت کی، جب اللہ نے ولایت کی بات کی تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ ولایت اکبر اللہ کی ہے، ولایت اصغر اس کے رسول کی ہے، اور اس کے بعد پھر ولایت علی کی ہے۔ فرمایا جیسا میں ولی ہوں ویسا ہی میرا رسول ولی ہے، ویسا ہی یہ علی ولی ہے۔ ولایت کے لغوی معنی ہے اختیارات، ولایت کے لغوی معنی ہے تصرف، ولایت کے لغوی معنی ہے کہ کسی چیز پہ اپنے مکمل تسلط کو قائم کرنا۔ ولایت حاکمیت کے معنی میں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ولایت کا معنی تصرف ہے، ولایت کا معنی حاکمیت ہے، ولایت کا معنی تصرف ہے، تو یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا اختیار تمہارے اللہ کے پاس ہے ویسا ہی اختیار تمہارے رسول کے پاس ہے، ویسا ہی اختیار علی کے پاس ہے۔ جیسا تصرف اللہ کے پاس ہے ویسا تصرف رسول کے پاس ہے، ویسا ہی تصرف علی کے پاس ہے۔ جیسا اختیار اور اقتدار اللہ کے پاس ہے ویسا ہی رسول اور علی کے پاس ہے۔ تو جب اللہ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ جتنے اختیارات میرے ہیں، جیسے اختیارات میرے ہیں، جہاں تک اختیارات میرے ہیں وہاں تک اختیارات علی ابن ابی طالب کے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کے جو اختیار ہیں وہ سارے ہی اختیار علی ولی اللہ کے پاس بھی ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ چلیں آپ اختیارات امیر المومنین کو نہ مانیں، آپ اختیارات امیر المومنین کو تسلیم نہ کریں، لیکن آپ اتنا تو مان گئے ہیں نا کہ علی امام ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جو آگے چلے۔ امام کہتے ہیں پیشرو کو، امام کہتے ہیں راہبر کو، امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، امام کہتے ہیں جس کی اطاعت میں چلا جائے۔ جس کا مطلب ہے کہ اگر انسانیت نے مولا علی کے اختیارات کا انکار کیا ہے، معجزات کا انکار کیا ہے، کمالات کا انکار کیا ہے، تو اس نے اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ حضرت علی مولا امیر المومنین امام نہیں تھے۔ اگر تم امام مانو گے تو علی کس کے امام تھے؟ کہتے جی علی انسانوں کے امام تھے۔ تو کس انسان کی بات کر رہے ہو؟ وہ انسان جو آج ہواؤں میں اڑ رہا ہے، وہ انسان جو آج سمندر کی تہوں میں محو سفر ہے، وہ انسان جو ہوا میں تحلیل ہو کے ایک سے دوسری جگہ پہ پہنچ رہا ہے، وہ انسان جو شکم مادر میں بچوں کی جنس تبدیل کرنے پر بھی قادر ہو چکا ہے، وہ انسان جو چاند کے سینے پہ قدم رکھ رہا ہے، وہ انسان جو اپنی مرضی سے دھرتی سے اپنا اناج اگا رہا ہے، وہ انسان جو بدن کے اعضاء کو تخلیق کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، وہ انسان جو دنیائیں تخلیق کر رہا ہے، وہ انسان جو ستاروں کی گردش کو جان رہا ہے، وہ انسان جو زمین کے اندر چھپے ہوئے اللہ کے رازوں کو پہچان رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ترقی کی جب اوج ثریا پہ پہنچ جائے تو وہاں جا کے اس اوج پہ جا کے سوچے کہ اگر میں اس ترقی پہ پہنچا ہوں تو وہ امام کس ترقی پہ ہوگا۔ کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب بہت خوب۔ اگر تم کہو گے کہ انسانیت نے اتنی ترقی کر لی تو یہ انسانیت کی جتنی بھی ترقی ہوگی یہ امام کی ترقی کے آگے اس لیے کچھ نہیں ہوگی کہ انسانیت امام نہیں، بلکہ انسانیت اطاعت امام میں۔ بے شک۔ آپ نے کیا سمجھا کہ ولایت کیا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا کہ ولی کہنا صرف جس طریقے سے یہ لفظ ولی کو اتنا سستا کر کے استعمال کیا گیا، اتنا ہلکا کر کے استعمال کیا گیا، فلاں یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اس کی ساری کی کوشش یہ تھی کہ یہ عہدہ ولایت کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ اگر کل کو کوئی حضرت علی کو ولی کہے تو وہ بالکل ایسا ہی لگے جیسے ایک دنیا کا فقیر ولی ہے، ویسا ہی علی ولی ہے۔ لیکن دنیا کے فقیروں کی علی کی ولایت کے ساتھ کیا مقابلہ۔ مولا امیر المومنین امیر ممکنات اپنے صحن مبارک سے باہر نکل رہے تھے اور دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا ایک اس دور کا فقیر جو اپنے آپ کو اس دور میں درویش سمجھتا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو علی کو چھوڑ کے اپنے آپ کو
ये समझते थे कि शायद हम आरफ बन गए हैं, शायद हम अल्लाह को पहचान गए हैं। तो मौला अमीर अल मोमिनीन अपने घर से निकल के मस्जिद के दरवाजे पे आए तो मस्जिद कूफा के दरवाजे पे बैठे हुए एक फकीर को देखा जो फकीर के भेस में था, फकीर नहीं था, फकीर के भेस में था। अमीर अल मोमिनीन ने उससे पूछा कैफ अस्बह का, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो उसने कहा इज़ा अनफक़त सबरना व वजदना का शुक्रना, जब मिल जाता है तो सब्र करते हैं, नहीं मिलता तो शुक्र करते हैं। जब मिल जाता है तो सब्र करते हैं, जब नहीं मिलता तो शुक्र करते हैं। ये कह के वो अमीर अल मोमिनीन को उसने समझा कि मैंने अपनी फकीरी बता दी है। जब अमीर अल मोमिनीन आगे गुजर गए तो उसने कहा मुझसे तो पूछ लिया कि मेरा हाल क्या है, अब आप बताइए कि आपका हाल क्या है। अली दे के कहते हैं तुझ में और मुझ में यही फर्क है, तुझे जब मिलता है तो सब्र करता है, नहीं मिलता तो शुक्र करता है। हमें जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, जब नहीं मिलता तो हम खुदा की बारगाह में बांटने की जुस्तजू करते हैं। क्या बात है, नाराए हैदरी या अली। या अली मद अल्लाहुम्मा मोहम्मद मोहम्मद। हम तो मखलूक खुदा को बांट देते हैं, तो दुनिया की विलायत का अमीर अल मोमिनीन की विलायत के साथ कोई मुकाबला नहीं। फरीदुद्दीन गंज शकर से किसी ने पूछा था कि आप भी वली हैं, हजरत अली भी वली हैं, तो फिर आप अली अली क्यों करते हैं, जबकि आपके पास तो वही ओहदा है जो अली इब्न अबी तालिब के पास है। फरीदुद्दीन देख के कहने लगे तू कौन है? कहने लगा कि मैं आपका मुरीद हूँ। तू कहाँ से आया है? मैं फलां जगह से आया हूँ। तो क्या काम करता है? कहने लगा कि मैं तो किसी घर की नौकरी करता हूँ, मैं तो किसी के पास मुलाजमत करता हूँ। फरमाया तो जिनकी मुलाजमत करता है वो क्या खाते हैं? कहने लगा वो रोटी खाते हैं। फरमाया तू क्या खाता है? कहने लगा मैं भी अनाज और रोटी ही खाता हूँ। फरमाया तू भी रोटी खाता है, वो भी रोटी खाते हैं, लेकिन वो मालिक है, तू नौकर है, वजह क्या है? कहने लगा उनके घर की है, मैं मांग के लाता हूँ। फरमाया यही फर्क है अली की विलायत में, और अली की विलायत अली के घर की है, हम सारे वली अली के दरवाजे से मांग के लाते हैं। क्या बात है। विलायत और इख्तियारात अमीर अल मोमिनीन को समझने के लिए एक बहुत सेर हासिल गुफ्तगू चाहिए कि अली इब्न अबी तालिब के इख्तियारात क्या हैं, विलायत कहते किसे हैं। जनाब सलमान मोहम्मदी से किसी ने पूछा था, ए सलमान मोहम्मदी, अगर तू उनकी हुकूमत को मान लेता तो तुझे भी हुकूमत में कोई हिस्सा मिल जाता, क्योंकि तू नबी का बुजुर्ग सहाबी है, यकीनन तुझे किसी न किसी एक अच्छे मुल्क की गवर्नरी मिल सकती थी, लेकिन तूने गवर्नरी को ठुकरा के अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे बैठने को तरजीह दी। तू बता कि तूने दुनियावी वो शान और शौकत जो तुझे हाक में वक्त दे रहा था, वो दिरहम और दिनार जो तुझे फौरन मिल रहे थे, उनको ठुकरा के तूने यहाँ दरवाजे में बैठने को गनीमत क्यों समझा? क्या मिला है तुझे अली अली करके? क्या मिला है तुझे अली की मोहब्बत को पाके? इतना कहना था। सलमान मोहम्मदी ने अपनी दाढ़ी को दहलीज सैयदा से उठाया, अपनी पेशानी को दहलीज अमीर अल मोमिनीन से उठाया, और उठाने के बाद उसका चेहरा देख के कहने लगे क्या बताऊं कि अली ने मुझे क्या क्या दे दिया है। उसने कहा ना तेरा लिबास कीमती है, न तेरे पास दिरहम दिनार है, न तेरा मकान इस कदर खूबसूरत है, तो बता तुझे अली ने दिया क्या है। तेरे पास तो सवारी नहीं है, तेरे पास पहनने का लिबास नहीं है। सलेमान मोहम्मदी कहते मेरी जाहरी हालत देख के मेरे मौला के इख्तियारात को न भौंक, अली ने मुझे अपनी विलायत से वो अता कर दिया है कि अगर मैं इशारा करूं तो आसमान के परिंदे मेरी जियारत के लिए नीचे उतरना शुरू हो जाए। क्या बात है किबला, जियो जियो। अगर मैं उंगली का इशारा करूं तो आसमान के परिंदे मेरी जियारत के लिए आए। और इससे अगला जुमला सुनिएगा, फरमाया अगर मैं समुद्र के किनारे चला जाऊं तो आबी जानवर मेरी जियारत के लिए उछल उछल के बाहर आना शुरू हो जाए। उसने
मुस्कुरा के कहका मार के कहा, ये सब बातें ही हैं, कहाँ किसी बशर के लिए परिंदे उतरते हैं। इतना कहना था। जब उस शख्स ने ये कहते हुए आसमान की तरफ देखा तो मतला खाली था। यूं ही सलमान मोहम्मदी ने आंख उठाई तो एक परिंदों का गौल सलमान के सर के ऊपर आया। सलमान ने परिंदों के गौल की तरफ देख के कहा, शर्म नहीं आती, अली के नौकर को झुटलाया जा रहा है। इतना कहना था, परिंदे जमीन पे सलमान के कदमों पे गिर के कहने लगे, लब्बैक या सलमान, लब्बैक या सलमान, लब्बैक या सलमान। नारे अली 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 अली, क्या बात, जियो किबला की, वाह। सलमान मोहम्मदी ये थे, विलायत से उन्होंने क्या मिला। सलमान मोहम्मदी कहते थे, अगर दुनिया को अली कहना आ जाए तो दुनिया पानी पे चलना शुरू कर दे। और दूसरे सहाबी हैं जुंदब बिन जनादा, हजरत अबू जर गफारी, सरकार हजरत अबू जर गफारी, हमेशा उनके हाथ में असा होता था और असा पकड़ के खिलाफतों के दौर में दरबार में आ जाया करते थे और असा को घुमा के कहा करते थे, तूने फलां को इतना माल क्यों दिया, तूने बैतुल माल से फलां को इतना क्यों दिया, इतना क्यों। वो हर वक्त हुकूमत पे तनकीद करते थे, इतनी तनकीद करते थे। और तनकीद भी किसी महफिल में बैठ के नहीं, दरबार के अंदर खड़े होकर करते थे, हाकम के मुंह पे करते थे, बादशाह वक्त की आंखों में आंखें डाल के करते थे। यही वजह थी अबू जर की जलावतनी की, कि अबू जर को निकाला गया इस वजह से कि हजरत अबू जर गफारी जो थे, हजरत अबू जर गफारी सामने खड़े होकर हजरत अबू जर गफारी हाकम पे तनकीद किया करते थे। वही हजरत अबू जर गफारी के दरवाजे पे रात के वक्त हाकम ने सिपाहियों को भेजा। उन सिपाहियों ने हजरत अबू जर गफारी के दरवाजे पे गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से हजरत अबू जर बाहर आए। बाहर आना था, उन्होंने हजरत अबू जर गफारी के कदमों पे एक अशरफियों की थैला रखा। हजरत अबू जर गफारी ने देखा, ये क्या है। कहने लगे, हाकम ने आपके लिए अशरफियां भेजी हैं। किस वजह से? इसलिए कि हजरत अबू जर गफारी उनके नाजायज माल के तकसीम पे हमेशा एतराज किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि अबू जर जो दिन की रोशनी में आके हमारे माल तकसीम पे एतराज करते हैं, क्यों ना हम रात की तरीकी में अबू जर को वही माल दे दें, हो सकता है कि सुबह को अबू जर एतराज करना छोड़ दे। उन्होंने अबू जर के दरवाजे पे जब अशरफियों के थैले को रखा, हजरत अबू जर गफारी ने एक नजर अशरफियों के थैले को देखा, एक नजर हाकम के सिपाही को देखा, और सिपाही को देखने के बाद ये तारीख के जुमले हैं कि हजरत अबू जर गफारी ने ठोकर मार के कहा, गनिम तो विलायत अली इब्न अबी तालिब, मुझे अली की विलायत ने गनी कर दिया है। क्या बात, क्या बात है, जियो मुझे अली की विलायत ने दुनिया से गनी कहते हैं बेनियाज को, मुझे दुनिया से बेनियाज कर दिया है। ये है अली की विलायत का इख्तियार। खुदा बेनियाज है, लेकिन अली की विलायत भी दुनिया से बेनियाज कर देती। बेशक आप दुनिया की मोहब्बत वहां रह नहीं सकती जहां अली की मोहब्बत हो। ये है अबू जर गफारी जो ये कहते हैं कि मुझे दुनिया की लालच से अली की मोहब्बत से पीछे न करो, अली की मोहब्बत ने मुझे दुनिया की हर दौलत से बेनियाज कर दिया। बेशक ये इख्तियारात हैं और ये विलायत है। मौला से आके एक शख्स ने पूछा कि मौला, ये आपके मुहिब जो हैं, इनको जो भी लालच दिया जाए, जितना भी लालच दिया जाए, जैसा भी लालच दिया जाए, ये आपको छोड़ते क्यों नहीं? अगर मुझे कोई कहे कि आज की जो मजलिस में विलायत अली 313 में पढ़ रहा हूं, तो उस मजलिस में सबसे खूबसूरत हिस्सा और खूबसूरत पार्ट क्या होगा, तो ये वो पार्ट होगा जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। सवाल किसने किया? एक शख्स ने। किससे? इमाम से, कि आपके शिया हर लालच, हर एक लालच, हर एक हिर्स और तमा को ठुकरा के आपसे मोहब्बत नहीं छोड़ते, और मौत का डर भी इन्हें आपसे पीछे नहीं करता। ये वजह क्या है? ये नहीं है कि हर शिया ही की तरबियत आपने की है, हर शिया ही को आपने सेंचा है, हर शिया ही को आपने अपने मोजा दिखाए हैं। जो आपको नहीं भी देखते वो भी आपसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं। जिन्होंने आपको नहीं देखा वो भी आपसे ऐसे इश्क करते हैं। तो ऐसी मोहब्बत और किसी को नसीब नहीं हुई, आपके शिया आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? सैयद साहब, अगर इजाजत हो तो मैं जुमला इमाम का पढ़ने लगा, और आज की इस मजलिस का ये खूबसूरत तरीन हदीस का टुकड़ा होगा। जब उसने कहा ये आपके शिया आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, तो इमाम ने फरमाया, खोले को शिया तो ना
लिफाज़लतीनतना, हमारे शियों को हमारे बदन की फाजल तीनत से खल्क किया गया है। आहा, क्या बात। वा ओजनू बेमाए विलायतना, और इनके खमीर को हमारे विलायत के पानी से गूंदा गया है। आहा, सुभान अल्लाह। मौला फरमाते हैं कि हमारे शीयों को हमारे बदन की हमारे जिस्म की, नूर की नहीं, हमारे जिस्म की फाजल तीनत से खल किया गया, और इनके खमीर को हमारी विलायत के पानी से गूंदा गया है। यही वजह है कि हमारा शिया दुनिया में कहीं भी हो, वो हमें देखे या ना देखे, वो हमसे मोहब्बत नहीं छोड़ता और हमारे दुश्मन पे तबर्रा नहीं छोड़ता। दुश्मनाने अहले बैत पर लानत, बेशुमार नारे हैदरी, या अली 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 अली। जियो किबला। मौला फरमाते हैं कि उन्हें हमारे विलायत के पानी से गूंदा गया है, माजून किया गया है। माजून का लफ्ज इस्तेमाल में ओजनूम, माजून उस एक चीज को कहते हैं जहां दो अज्जा को ऐसे इकट्ठा किया जाए और सफूफ बनाया जाए कि दोनों अज्जा अपनी हकीकत को खत्म कर दें। मौला फरमाते हैं कि हमारे शियों के दिल से हमारी विलायत को ऐसे नहीं निकाला जा सकता जैसे गुलकंद से गुल और कंद को अलहदा नहीं किया जा सकता, वैसे शियों के दिल से अली को अलहदा नहीं किया जा सकता। बेशक। तो अब वही अमीर अल मोमिनीन, वही अली इब्ने अबी तालिब जिसकी विलायत और ये इख्तियारात हैं। फिर अब सवाल ये होता है कि जिसके पास ये इख्तियारात और विलायत थे, अब हम ये सवाल करने का हक रखते हैं कि ज़ाहरी तौर पे हुकूमत अली से छीनी गई, ज़ाहरी तौर पे अमीर अल मोमिनीन को हुकूमत से दूर किया गया, लेकिन हकीकत में इख्तियारात अमीर अल मोमिनीन में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वो इख्तियारात अगर बंदों ने दिए होते और बंदे वापस ले लेते, लेकिन वो इख्तियार अल्लाह का दिया हुआ था। लोग बैयत करके खलीफा बनाते हैं और बैयत तोड़ के खिलाफत खत्म कर देते हैं। अमीर अल मोमिनीन के पास जो इख्तियारात थे, जो ताकत थी। अब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अमीर अल मोमिनीन कूफा पहुंच चुके हैं, कूफा मरकज बन चुका है, कूफा में मौला अमीर अल मोमिनीन का दारुल हुकूमत कायम हो चुका है। अब अमीर अल मोमिनीन इस दौर में है कि ये 2.5 साल का जो दौर है, ये इस्लाम का रोशन तरीन दौर है। एक अंग्रेज मौर्रख ने, जिसने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को लिखा, उसने कहा कि मुसलमानों का रोशन तरीन दौर वो अली का 2.5 साल का दौर हुकूमत। और उसने जुमला जो अगला कहा, वो जुमला सुनिएगा। उसने कहा अली का वो 2.5 साल का इक्तदार का दौर इतना रोशन दौर था कि उस 2.5 साल में एक भी चोर का हाथ नहीं काटा गया। सुभान अल्लाह। उस 2.5 साल में किसी के माल पे कब्जा नहीं हुआ। कितना रोशन तरीन दौर था कि अमीर अल मोमिनीन ने अपने गवर्नरों को जो खत लिखे, वो खतूत आज भी तारीख का हिस्सा है। अगर आज भी उन खतूत को दुनिया के हुक्मरान नाफज कर लें तो दुनिया में अमन कायम हो जाए। अमीर अल मोमिनीन ने अपने गवर्नर को खत लिखा और गवर्नर को खत लिख के कहा कि मैंने सुना है कि तू अपना नया मकान बना रहा है। अगर तो तू अपनी दौलत से बना रहा है तो मैं तुम्हें बताऊं कि तू वो घर बना रहा है जिसमें तूने रहना नहीं है, और अगर तू बैतुल माल से बना रहा है और मुसलमानों के माल से बना रहा है तो मैं अली तुम्हें खबर देता हूं कि तू यहां घर नहीं बना रहा, तू जहन्नम में घर बना रहा है। लश्कर नहीं भेजा, सिर्फ एक जुमला लिख के भेजा है। और गवर्नर अली के अमीर अल मोमिनीन के दरवाजे पे आके अमीर अल मोमिनीन से माफी का तलबगार हो गए। लेकिन इस रोशन तरीन दौर में अब अमीर अल मोमिनीन को साहिबाने अक्ल व मारिफत दुश्वारियां क्या है? इल्म भी फैलाना है,
साजिशों का मुकाबला भी करना है और दुश्मन अमीर अल मोमिनीन को जमल और सफीन में ललकार रहा है। अब मैंने अपनी पिछली गुज़िश्ता मजालिस में मैंने वादा किया था कि मैं किसी एक मजलिस में बताऊंगा कि कूफा वालों ने ये किरदार अदा क्यों किया। कूफा में 3 तरह के तबके थे, क्योंकि कूफा एक फौजी छावनी थी। कूफा कोई कदीम आबादी नहीं थी। ये 17 हिजरी को ये शहर आबाद किया गया था, और ये दुनिया का तरीका है कि जहां मुख्तलिफ तहजीबों के लोग रहते हो वहां अमन नहीं होता। जहां मुख्तलिफ जहनों के लोग रहते हो वहां अमन नहीं होता। कूफा मुख्तलिफ जहनों के लोगों की आमाज का थी। कूफा में कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, तो मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों से लोग हिजरत करके नई आबादी थी, एक नया शहर था, यहां आके लोगों ने इसे आबाद कर दिया। और अक्सरियत मिलिट्री के लोग, आर्मी के लोग, फौज के लोग यहां पे रहते थे। अब एक बात अगर आप ज़हन नशीन करें तो तारीख बड़ी आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी जो गलत फहमी तारीख के तालिब इल्म को और सुनने वाले सामीन को होती है, वो ये समझते हैं कि जितने लोग इस्लाम की जंगों में जाते थे वो सारे मुजाहिदीन इस्लाम थे। ये बात ज़हन में रखिएगा कि जंग करना अरबों का पेशा था, लड़ना उनकी जॉब थी। वो लड़ने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो जंग करने के लिए जाते थे सिर्फ इस वजह से कि वो जंग में जाएंगे, जंग जीतेंगे, वहां से माले गनीमत लूटेंगे और फिर अगले 6 महीने 1 साल अपने घरों में सुकून करेंगे। बात मेरी समझ रहे हैं जी आप? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग, अब मैं ये नहीं बात कर रहा कि अक्सर ये टोटल ये था, नहीं, मैं अरबों का मजाज बता रहा हूं कि अरबों के मजाज में लड़ना उनका मशगला था, उनका पेशा था, उनका जरिया मुआश था। वो कमाते और खाते ही लड़ाइयों से थे। रिसालत माब के साथ लोगों ने अगर मुसलमान हो के एक हिस्सा, एक टोला, मैं सारे मुजाहिदीन की बात नहीं कर रहा, अगर कुछ लोगों ने लालच में आके रसूल के साथ जंगें की तो वो लोग अब मदीने आबाद हो चुके थे, वो बदर से कमा चुके थे, उन्होंने ओहद से माल लूट लिया था, वो खैबर से एक एक ऊंट की खाल के बराबर सोना लेके आए थे। मुसलमानों को सबसे ज्यादा अमीर खैबर ने किया था। बेशक सही बुखारी में लिखा हुआ है कि रसूल की एक बीवी ने कहा था कि खैबर फतह होने के बाद हमने जी भर के, पेट भर के खजूरें खाई। मुसलमानों के बच्चे मदीने की गलियों में सोने की डलियों से खेल रहे थे। लोग दुकानों में जाके अपना कर्ज उतार रहे थे कि हमारे ऊपर जितना भी कर्ज है वो बताओ, आज हम अदा करेंगे, क्योंकि हम खैबर से इतना माल ला चुके। एक एक सहाबी एक एक कंतार सोना लेके आया था। और वही किताबें कहती हैं कि जिसकी तलवार की वजह से ये जंग जीती गई थी, जिसकी जुल्फकार की वजह से ये जंग जीती गई, जिसने किला कमूस को फतह किया था, जिसने मरहब नामी पहलवान को मारा था, जिसने खैबर का फाते बना था, वो अमीर अल मोमिनीन जब अपने घर आया तो हाथ में सिर्फ एक खून वाली तलवार थी। अमीर अल मोमिनीन घर आए तो जनाब सैयदा ने अमीर अल मोमिनीन के सामने जाके कहा कि मैंने सुना है कि आज मदीने की गलियों में मुसलमानों के बच्चे सोने के साथ खेल रहे हैं, आज लोग दुकानों पे जाके अपने कर्ज उतार रहे हैं। तो बीबी ने कहा ये भी मैंने सुना है कि खैबर फतह भी आप ही ने किया है, तो आपके हिस्से में क्या आया? ये जुमला सैयदा का माजल्ला लालच नहीं था, सिर्फ लोगों को अली बताना था, इतना कहना था। अमीर अल मोमिनीन मुस्कुरा के कहते हैं, मेरे आका की बेटी, आप बेहतर जानती है वो सदका था, हम सैयद हैं। क्या हुआ था? नारे हैदरी, अली 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 अली, जियो के लेकिन हमारा तारीख से सवाल ही इतना है कि लोग सदका भी खाते रहे और सैयद भी बनते रहे। अब ये लोग इसलिए लड़ते थे, लड़ना उनका पेशा था, लड़ना उनका मशगला था, लड़ना उनका जरिया मुआश था।
اب کوفہ میں جو لوگ آباد تھے ان میں سے 3 طرح کے طبقے تھے. پہلے وہ تھے جو محبت علی میں لڑتے تھے. دوسرے وہ تھے جو مولا امیر المومنین کو حاکم وقت خلیفہ وقت سمجھتے تھے اور خود علی کی فوج تھے، یعنی کہ اسلام کا لشکر تھے، اور وہ امیر المومنین کو خلیفہ سمجھ کے، حاکم سمجھ کے ان کے آرڈر کو مانتے ہوئے لڑتے تھے. اور ان میں سے وہ لوگ تھے جو پہلے خلیفہ کے لشکر میں بھی رہے، دوسرے خلیفہ کے لشکر میں بھی رہے، تیسرے خلیفہ کے لشکر میں بھی رہے، اور اب مولا علی کے لشکر میں بھی. اب ایک تیسرا طبقہ تھا جن کو شام سے یہ کہہ کے کوفہ شفٹ کر دیا گیا تھا کہ تم اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا کہ تمہارے دل شام والوں کے ساتھ، تم اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا کہ تم علی کے شیعہ ہو. بہت بڑی غلط فہمی باتوں سے ہی ختم کی جا سکتی ہے. کاش یہ بات آج کے اس چینل کے حوالے سے ایک بندے تک بھی پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ بارگاہ جناب سیدہ میں اس چینل کی محنت اور میری محنت قبول ہو گئی. جو کوفہ سے خط امام حسین کو لکھے گئے تھے وہ شیعہ نے علی کے خط نہیں تھے، وہ شیعہ نے معاویہ کے خط تھے. لعنت بیش. آج تک وہ خطوط شیعوں کے گلے میں یہ کہہ کے ڈالے جا رہے ہیں کہ شیعوں نے حضرت امام حسین کو بلایا تھا. آپ پہلے یہ تو بتاؤ وہ شیعہ تھے کون؟ اب اگلی جملہ کہوں گا تو شاید میرا خیال ہے کہ میرے سننے والے ناظرین و سامعین کے لیے یہ بات بڑی اچھی ہو. میں فرق بتا دیتا ہوں کہ شیعہ نے معاویہ اور شیعہ نے علی میں کیا فرق تھا. شیعہ نے معاویہ گھروں میں بیٹھ کے علی کے شیعہ بن کے حسین کو خط لکھ رہے تھے، اور حسین مکہ میں بیٹھ کے علی کے شیعوں کو خط لکھ رہے تھے. کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب. حبیب ابن مظاہر اسی کوفے سے کربلا گئے، عابس شاکری اسی کوفے سے کربلا گئے، جناب مسلم بن اوسجا اسی کوفہ سے کربلا گئے ہیں. تو یہ جو لوگ کوفہ سے کربلا جا رہے تھے یہ تھے شیعہ نے علی، یہ تھے وہ شیعہ جو علی سے محبت کرتے تھے. ان کو بلایا گیا ہے کوفہ سے. اور جناب مختار سقفی، جناب ہانی بن عروہ، جناب ہانی بن عروہ تو جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ شہید ہو گئے. جناب مختار سقفی، اب یہاں پر یہ مختار سقفی کا کردار کہ مختار سقفی واقعہ کربلا میں کہاں تھے، تو مختار سقفی واقعہ کربلا میں ابن زیاد کی قید میں تھے. صرف اکیلے مختار سقفی قید تھے. 14,000 شیعہ واقعہ کربلا کے وقت ابن زیاد کی قید میں مختار کے ساتھ تھا. جب واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو کوفہ سے گزارا گیا تو علی کے شیعہ یا مار دیے گئے تھے یا قید خانوں میں تھے. یہ جو کوفہ میں جشن منایا گیا تھا یہ شیعہ نے معاویہ کا جشن تھا. لعنت بیش. تو صاحبان بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ وہاں گروہ بن گئے. شیعہ گروہ کو کہتے تھے، علی کا گروہ، معاویہ کا گروہ. اب شام سے کوفہ میں ان لوگوں کو آباد کیا گیا. جنگ جمل بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی، امیر المومنین نے اٹھا دیا. جنگ صفین بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی کہ کیونکہ ابو موسیٰ عشری نامی ایک کردار جو مقدس نما کردار تھا، اس نے جیتی ہوئی جنگ کا نتیجہ ہی بدل دیا. اب امیر المومنین کے پاس کون لوگ رہ گئے تھے جو علی کے حقیقی دوست تھے؟ حجر بن عدی قتل ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، مال کے اشتر مارے جا چکے تھے. وہ جو پر تھے نا مولا امیر المومنین کی، وہ جو بازو تھے امیر المومنین کی، وہ جو طاقت تھی امیر المومنین کی، وہ جو لشکر تھا امیر المومنین کا، وہ جمل اور صفین اور نہروان میں بہت زیادہ علی کے دوست، علی کے صحابہ شہید ہو چکے تھے. اب امیر المومنین کے پاس جو ارد گرد کثرت تھی وہ کثرت تھی منافقین کی
जो चाहते थे किसी तरीके से मौला अमीर अल-मोमिनीन को इतना कमजोर करें कि इन्हें कमजोर करके कैदी बना के शाम पहुंचा के कूफा और मदीना भी शाम वालों के तसल्लुत में दे दिया जाए। साहिबान, आप इन बातों को, क्योंकि यकीनन मैं खतीब हूं, खताबत मेरा काम है, मैं इन मजालस को अगर मोजज़ात के जरिए इनमें इख्तियारात पढ़ता, इनमें खताबत के जौहर दिखाता, तो मेरे लिए ये 50, 55 या 60 मिनट गुजारना बड़ा आसान था। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सैयदज़ादा जो एक मेहनत कर रहा है, उस मेहनत में हमारा हिस्सा ये आए कि हम ऐसे टॉपिक्स, ऐसी गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा दे जो हमारे लिए मजालस और मिंबर पे करना मुश्किल है। उससे मुराद मुश्किल ये नहीं है कि हमारे लिए कोई जिंदगी से मोहब्बत या मौत का डर है। उसमें मुश्किलात ये हैं कि ये वो मौज़ूआत हैं जिसमें मजालिस में बैठी हुई अवाम जो है वो इन मौज़ूआत को सुनने की आदी नहीं रही। लेकिन जब हम ऐसे चैनल्स में इन गुफ्तगू को रिकॉर्ड करवाएंगे तो ये गुफ्तगू एक तारीखी दस्तावेज बन जाएगी, एक डॉक्यूमेंट्स की सूरत में महफूज हो जाएगी सोशल मीडिया पे, कि सालों बाद भी कोई हिस्ट्री का तालिबे इल्म देखना चाहे कि हकाइक कहाँ पे पड़े हैं, तो ये विलायत अली 313, क्योंकि 313 नुमाइंदगी ही कायम के सिपाहियों की है, तो ये कायम के सिपाहियों को नुमाइंदगी का अपना हक अदा कर सके। अब कूफा में ये हालात बन चुके हैं, कूफा में अमीर अल-मोमिनीन इस कदर तन्हाई हो गई है कि अमीर अल-मोमिनीन कूफा के मस्जिद कूफा की दीवार के साथ लग के बैठ के अमीर अल-मोमिनीन ने ठंडी आह भर के कहा कि तुम लोगों ने अली को अली के हक से महरूम कर दिया, तुमने अमीर अल-मोमिनीन को धोखा दिया। अब कैसे हो सकता है कि खलीफा वक्त हजरत अली हो, मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौजूद हो, और साजिशें इतना घेरा पा चुकी थी कि उसी कूफा में अमीर अल-मोमिनीन का कातिल एक घर में बिठा दिया गया था और जहर से भरी हुई तलवार शाम से भेजी गई। अमीर अल-मोमिनीन को हालत सजदा में शहीद कर दिया जाता है। अब अमीर अल-मोमिनीन की शहादत के बाद वो लोग तो वो थे जिनको मैं अभी बड़ी जल्दी में बयान कर चुका कि वो मुहिब्बान अली जो थे वो या जमल में शहीद हो चुके थे, या सफीन में शहीद हो चुके थे, या जंगों में अली के साथ मारे जा चुके थे। अब जो पीछे बच गए थे थोड़े से लोग, मौला इमाम हसन मुज्तबा को जब इमामत मिलती है, मौला मसरद इमामत पे आते हैं, तो अब मौला के पास नासरीन ना होने के बराबर। अब दोबारा हाकिम शाम एक चाल चलता है कि वो शाम से एक वफद भेजता है, एक डेलीगेशन भेजता है जो मदीना पहुंचता है, जो कूफा आता है माजरत, और कूफा आके जनाब इमाम हसन मुज्तबा से कहता है कि हम शाम वाले से ये बात करके आए कि बहुत हो गया लड़ाइयां, आपके बाप से उसने बड़ी जंगें की, हम कहते हैं कि अब जंगें खत्म हो, अब किसी ना किसी तरीके से सुकून हो, मुसलमान सुकून से अपने घरों में रहे, बहुत नुकसान हो गया है, हजारों की सूरत में मुसलमान मारे जा चुके हैं। अब ये गलियों में ये कहते हुए जा रहे थे, जहां लोग इकट्ठे हुए बैठे होते उनको मिलके कहते, हमें शाम वाले ने भेजा है, उसने कहा इमाम हसन से जाके बात करो, इख्तिदार लेना है तो ले, हुकूमत लेनी है तो ले, लेकिन अब ये खून खराबा बंद हो। अब हर एक ने इस बात को सराहा, ये बात बहुत अच्छी है, हर एक ने अप्रिशिएट किया, बड़ी अच्छी बात है, मुसलमानों का खून अब बहाना बंद हो। अब लोगों के जहन में ये वफद आया है, ये इमाम हसन से जाके मुलाकात करेगा और इमाम हसन को जाके हाकिम शाम की ये पेशकश करेगा। इमाम हसन मुज्तबा के सामने जाके उन्होंने कहा कि हाकिम शाम कहता है कि आप मेरी हुकूमत को मान लें, वरना जैसे मैंने अली को कमजोर करके कूफा में शहीद कर दिया, अब कूफा मेरा हो चुका है, कूफा में मैंने अपने लोगों के इतने घर बना दिए हैं कि आप कूफा से लश्कर लेके नहीं निकल सकते। इमाम हसन मुज्तबा ने कहा कि मुझे वक्त दिया जाए कि मैं अपने खानदान और अपने दोस्त अहबाब से मशवरा करूं।
جب یہ مولا امام حسن کے دولت سرا سے باہر نکلتے ہیں تو باہر لوگوں کا ہجوم ان سے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا کہنے، ایسے ہی ہوتے ہیں رسول کے بیٹے، حق ادا کر دیا علی کے بیٹے نے۔ غلط کہتے تھے شام والے کہ شاید علی اور علی کے بیٹوں کو اب حکومت پیاری ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لوگوں نے کہا بھائی کہا کیا ہے؟ کہتے امام حسن نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اسے کہو حکومت لے لے، مجھے حکومت کی ضرورت نہیں۔ یہ پراپوگنڈا تھا۔ یہ دیکھیے یہاں سے پراپوگنڈا کا کیسا آغاز ہوا کہ امام موجود ہے اور ایک منفی پراپوگنڈا نے امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں یہ آواز بلند کر دی۔ اب وہ لوگ جو باہر کھڑے تھے کہ ہاں ہم نے اتنی جنگیں شام والے سے لڑی اب دوبارہ بھی لڑیں گے، وہی لوگ جا کے گھر کے اندر امام حسن پہ حملہ کر دیتے اور امام حسن مجتبیٰ کے نماز کی حالت میں نیچے سے مسلح کھینچ دیا جاتا ہے۔ مولا حسن کے پاؤں میں تیر لگتا ہے، مولا کی ٹانگ مبارک زخمی کر دی جاتی ہے۔ کن سے؟ جو یہ کہہ رہے تھے کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ زخمی حالت میں امام حسن مجتبیٰ مدائن میں جا کے مختار سقفی کے چچا کے گھر پناہ لیتے ہیں۔ اب یہ محرکات سمجھیے کربلا کے، اب یہ نہ سمجھے کہ کربلا اچانک ہو گئی۔ جب بھی محرم شروع ہوتا ہے تو ہر ایک خطیب، ہر ایک عالم دین بس یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر جا رہا ہوں، یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، یزید بد کردار تھا۔ یہاں سے کہانی شروع کر کے پچھلے ظالموں کو کیوں چھپا رہے ہو؟ بہت خوب قبلہ، بہت خوب۔ یہاں سے کہانی شروع کر کے پچھلے غاصبوں کو کیوں بچا رہے ہو؟ صرف اور صرف یہ سارے کا سارا جرم یزید کے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ اگر یہ سب کچھ یزید نے کیا تھا پھر بتاؤ امام حسن کا قتل کس نے کیا تھا؟ مولا علی کا قتل کس نے کیا تھا؟ سیدہ کے دروازے پہ آگ لے کے کون آیا تھا؟ مولا حسن کے جنازے پہ تیر کس نے مارے تھے؟ رسول کو زہر کس نے دی تھی؟ تو یہ سارے کام تو دور یزید میں نہیں ہوئے۔ مشکل ہے ان حقائق کو ممبر پہ بیان کرنا، مشکل ہے ان حقائق کو لوگوں تک پہنچانا۔ میں اپنے بادشاہ کے شہر میں بیٹھ کے اپنی ذات کو ایک کم تر ذرہ سمجھ کے مولا سے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ میرا بادشاہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اس نوکر کو یہ طاقت دی ہے کہ جتنی دیر میری زندگی ہے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہوں، میں آپ کے دشمنوں کے چہروں سے نقاب کھینچوں۔ جیو قبلہ۔ مصلحت نہیں ہے، خوف نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا سے میرے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو کرم دیکھ میرے شہنشاہ کا، میرے مالک نے مجھے اپنے شہر میں اپنے حرم میں کھڑا کر کے کہا ہے کہ اب ذکر کر یہاں پہ۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ میں آج مولا کے حرم میں بیٹھے ہوئے میں نے ایک دو سطریں کہی تھی کہ ان کی منشا تھی کہ میری زباں بول نہ پائے، ان کی منشا تھی کہ میری زباں بول نہ پائے، بولے حیدر کر مدحت میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ حقائق ہیں نسلوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، ہم پہ واجب ہے ہم نسلوں کو بتائیں کہ یہ سارے کردار جو تھے یہ قتل حسین میں شریک تھے۔ صاحبان، کوفہ بے وفاؤں سے بھر گیا، کوفے کے لوگ جو علی کے شیعہ تھے وہ قید خانے میں تھے، یا انہیں شہروں سے نکال دیا گیا، یا وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ یہ وہی کوفہ تھا جہاں مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے تھے، یہ وہی کوفہ تھا۔ میں ابھی آج کی مجلس ختم کرنے کے بعد کوفہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ میں آپ تمام احباب کی طرف سے آپ کی نیابت میں جناب مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کر کے اور آپ کی تعزیت پیش کروں گا کہ مولا دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے مومنین نے بھی آج آپ کی شہادت کا ماتم
नजफ की फजा से इस नौकर की आवाज से सुन के किया। इतना तन्हा कर दिया गया हुसैन के सफीर को, इतना तन्हा कर दिया गया हुसैन के सफीर को कि जनाब मुस्लिम बिन अकील जब कूफा की गलियों में बिल्कुल तन्हा रह गए, भरा हुआ है कूफा और अकेले मुस्लिम, कोई मुस्लिम को पनाह नहीं दे रहा, दरवाजे बंद हो चुके हैं। जनाब मुस्लिम चलते चलते वहां गए जहां कूफे की आखिरी गली थी। अब इसके आगे दीवार थी और रास्ता बंद था। जनाब मुस्लिम उस दीवार के साथ लग के बैठ गए। या उसी गली में से एक मस्तूर ने अपने घर का दरवाजा खोला। उसने बाहर बाजार में बैठे हुए एक मुसाफिर को देखा। देख लगे मुसाफिर, कूफे के हालात ठीक नहीं है, नया गवर्नर आ गया है, वो हुसैन के सफीर को ढूंढ रहा है। मुसाफिर, कूफे के हालात बेहतर नहीं, अपने घर वापस जा। जनाब मुस्लिम देख के कहते जिसका घर ही कोई ना हो। वो मजदूर देख के कहने लगी अगर तेरा कोई घर नहीं मस्जिद में जा। जनाब मुस्लिम देख के कहते अगर मस्जिद में कोई रहने ना दे। कहने लगी अगर नहीं जा सकता, ना मस्जिद में कोई रहने देता है, ना तेरा कोई घर है, तो मैं तेरी मिन्नत करती हूँ मेरे दरवाजे के आगे ना बैठ, कहीं तेरी वजह से मेरे ऊपर कोई परेशानी ना आ जाए। जनाब मुस्लिम ठंडी आह भर के उठे और उठते हुए कहने लगे या सैयदा फातिमा ज़हरा। नाम ज़हरा की अलफ उस औरत के कान में गई। बंद दरवाजे को दोबारा खोला, पीछे आके जनाब मुस्लिम के कदमों पे हाथ रख कहती किसका नाम लिया है? फरमाया रसूल की बेटी का। मस्तूर की आंखों से आंसू आ गए। कहने लगी तू उनको जानता है? जहां मुस्लिम देखा जैसा मैं जानता हूं कोई नहीं जानता, तेरे भरे कूफा में कोई नहीं जानता। कहने लगी क्या मतलब? फरमाया मैं उसी की औलाद में से अकील का बेटा मुस्लिम हूं। मुस्लिम का नाम आना था, मस्तूर का सर जनाब मुस्लिम के कदमों पे आया। रो के कहती आका माफ कर देना, मौला माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तकदीर का मालिक मेरे दरवाजे पे बैठा है। बिस्मिल्लाह मौला मेरे घर मेहमान बनिए। मौला ने फरमाया नहीं, मैं तेरे लिए मुश्किलात नहीं पैदा करना चाहता। देख के कहती क़यामत वाले दिन बतूल को जवाब क्या दूंगी? उनकी औलाद मेरे दरवाजे से रोती हुई चली गई। मौला तुझे उसे सैयदा का वास्ता मेरे घर, वास्ता सैयदा का था। जनाब मुस्लिम ने कबूल किया, अपने घर गई तो उसने कोशिश की कि मुस्लिम के लिए बेहतरीन कमरे का बंदोबस्त करे। जनाब मुस्लिम की आवाज आई मुझे घर के कोने पे मुसल्ला इबादत दे। मुसल्ला लिया। जनाब मुस्लिम मनाजात इलाही और इबादत इलाहिया में मसरूफ हो गए। दरवाजे पे बैठी हुई तो कभी मुंह मदीने की तरफ करती, रो रो के कहती बीबी फातिमा तेरा शुक्रिया, बीबी सैयदा तेरा शुक्रिया, तूने एहसान किया कि तेरे हुसैन का सफीर मेरा घर मेहमान बन गया। मोमना दरवाजे बैठी जनाब मुस्लिम का पहरा दे रही थी। दरवाजे पे इसी के बेटे ने मुखबरी की। दरवाजे पे सिपाहियों का शोर आया। दरवाजे पे सिपाहियों का शोर आना था। ज़ईफा मोमना का हाथ जिगर पे आया, घबरा गई कि मैं अपने मौला को कैसे बचाऊं। जनाब मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से तलवार खींची, अल्लाह अकबर कह के मुस्लिम सहन में आए। तो सामने आके हाथ जोड़ के कहती मौला बाहर न जाइएगा, वो ज्यादा है, आप अकेले हैं। जब मुस्लिम देखे थे क्या करूं? कहती मेरे घर में पनाह जितनी देर ले सकते उतनी देर तो पनाह ले। दा मुस्लिम ने कहा अगर फौज तेरे घर में दाखिल हो गई, कहने लगी मुझे कोई परवाह नहीं। जब मुस्लिम देखे थे तुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं हाशमी हूं, मैं अली का शागिर्द हूं, मैं गवारा नहीं करता कि मैं जिंदा हूं और तेरे घर में फौज आ जाए। आज जनाब मुस्लिम बिन अकील की कब्र पे जाके जरूर सवाल करूंगा कि मौला तूने मोमना के घर में फौज नहीं आने दी थी, शाम में गरीबा तेरी बहनों के कहमों में फौज खड़ी होके पूछ रही थी इनमें अली की बेटी कौन। जनाब मुस्लिम कूफा के दरवाजे पे गए। मोमना के दरवाजे पे जाके जनाब मुस्लिम ने फौज का सामना किया। इतनी जबरदस्त जंग लड़ी जनाब मुस्लिम ने, फौजें उल्टे पांव दौड़ी। कूफा की गलियों में भगदड़ मच गई, भगदड़ मची हुई थी। अकेला अली का शेर तलवार निकाले हुए कभी दाएं हमला कर रहा था, कभी बाएं हमला कर रहा था। और जनाब मुस्लिम जब गलियों में हमला कर रहे थे, आवाजें दे दे के कह रहे थे तुमने हमें गरीब समझा, तुमने हमारे जनाजे पे तीर मारे, तुमने हमारे घरों को आग लगाई, तुमने इसी कूफे में हमारे मौला को शहीद किया, तुमने इसी कूफा में हमारे हसन को ये गरीब किया। जामे मुस्लिम बिन अकील कूफा की गलियों में जंग लड़ रहे थे।
जब बार बार इब्न जियाद दस्ता भेज रहा था, आखिर उसने तंग आके कहा अकेला एक मुस्लिम है, इतनी फौज क्यों भेजी जा रही है? तो किसी ने कहा कि तू क्या समझता है कि किसी कूफे के आम शख्स से जंग हो रही है? ये हुसैन का सफीर है, अकील का बेटा है। कहने लगा अगर ये अकील का बेटा है तो हाशमी तलवार से नहीं धोखों से मारे जाते हैं। इन्होंने एक गली में गड्ढा खोदा, उस गड्ढे को भर दिया, ये चारों तरफ से हमला करते हुए जनाब मुस्लिम को घेर के उस गली में लेके आया। उस गली में मुस्लिम उल्टे पांव जा रहे थे, या जनाब मुस्लिम का पांव जो ही उस गड्ढे के खसो खशाक पे आया, जब मुस्लिम गड्ढे में गिर गए। जब जनाब मुस्लिम का गड्ढे में गिरना था, अब नजफ में बैठा, मुझे जुमला माफ कर देना, जिसके हाथ में तीर था उसने तीर मारा, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने गर्म पानी फेंका, जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा। अकेले जनाब मुस्लिम गड्ढे में बैठे जमीन पे लेटे हुए जख्मी हालत में कह रहे थे, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा अब्बास होता, आज मेरा कासम होता। इन्होंने जनाब मुस्लिम के हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां पहनाई, जख्मी मुस्लिम को इस हालत में गड़े से खींच के बाहर निकाला। जनाब मुस्लिम को कूफे की गलियों में लेके जा रहे थे। जनाब मुस्लिम का अबरू कट चुका था, होंठ कट चुका था, दांत मुबारक जख्मी था। जनाब मुस्लिम को लेके इब्न जियाद के दरबार में आए। ये मलाउन तख्त के ऊपर बैठा था। जनाब मुस्लिम बिन अकील आके दरबार में खड़े हुए। मुस्लिम की आंखों में वही अली वाला रोब, आंखों में वही जलाल। बेशक जख्मी थे लेकिन चेहरे पे वही रोब था, आंखों में वही जलाल थी। ये मलाउन सीढ़ियां उतर के इसने कहा, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? जनाब मुस्लिम इसकी तरफ देख के कहते, माले अमीर सवाए हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के, मुझे जुमला माफ कर देना। इधर जनाब मुस्लिम ने ये जुमला कहा, इस मलाउन ने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा। इधर से मंजिल जुबाला पे हुसैन का काफिला पहुंच गया था। हुसैन की चीख निकली, हुसैन की आवाज आई, मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, मैं हुसैन वादा करता हूं क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम। जनाब मुस्लिम के हाथों में रस्सियां, पाँव में रस्सियां, कैदी हालत में दारुल अमारा की छत पे लाया गया। दारुल अमारा की छत पे जनाब मुस्लिम का आना था। इन्होंने जनाब मुस्लिम से कहा, कोई वसीयत? जनाब मुस्लिम ने कहा, मुझे वसीयत मेरी एक है, मेरी जिर्रा बेच के कूफा में कुछ कर्ज है मेरे सर पे, वो कर्ज अदार देना। उन्होंने कहा, कोई और वसीयत? जनाब मुस्लिम ने कहा, मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। इन्होंने पीने के लिए पानी दिया। जनाब मुस्लिम ने पानी करीब किया, मुंह और होंठ का लहू जनाब मुस्लिम के पानी के प्याले में गिरा। मुस्लिम ने पानी के प्याले में लहू देखा। जनाब मुस्लिम ने कूफे की दीवार पे पानी फेंका। एक शख्स देखा था, पीना नहीं था तो पानी मांगा क्यों था? जब मुस्लिम ने कहा, इसमें भी मेरा कोई राज था। यह राज तब समझ में आया जब करबला के बाद अली की बेटियों के महमल इसी कूफा से जब बीबियों के ऊंट गुजरे हैं, तो जनाब मुस्लिम की बेटियां जब इस दीवार के करीब से गुजरी हैं, रो के कहती, अम्मा हमें बाबा के लहू की खुशबू आ रही है, अम्मा कहीं बाबा मुस्लिम के खून की खुशबू आ रही है। तो जनाब सैयदुल साजिदीन की आवाज आई, वो सामने दीवार पे मुस्लिम के लहू के छींटे हैं, वो कूफे के सदर दरवाजे पे मुस्लिम का सर है। ये सदर दरवाजे पे मुस्लिम के सर का नाम आना था। अली की बेटी की आवाज है, जल्दी गुजारो, मेरे सर पे चादर नहीं है। और मुस्लिम सर कूफे के दरवाजे पे लटक रहा है। जहां मुस्लिम नकील की आंखें बंद हुई, आवाज आई, अस्सलामु अलैका या बिन्ते रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद की बेटी तुझको मेरा सलाम हो। आवाज आई, अकील का बेटा आंखें ना खोलना, मेरे सर पे चादर नहीं है। जहां मुस्लिम नकील की आंखों से आंसू जारी थे। या जनाब रुकैया का महमल नीचे रुक गया। जनाब रुकैया के ऊंट का रुकना था। अली की बेटी की आवाज है, रुकैया जल्दी गुजर, तेरे सर पे चादर नहीं है। रो कर अली की इजाजत दे, मुझे मुस्लिम से कोई बात करनी है। बीबी ने जनाब मुस्लिम के सर के नीचे खड़ी होके जनाब मुस्लिम की जौजा दे के कहती है, मैं नहीं पूछती कि कैसे मारे गए, मैं नहीं पूछती कि कूफा में क्या हालात हुए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैंने आपके साथ अपने 2 बेटे भेजे थे, मुझे बता मेरी जोड़ी कहाँ है, मुझे बता मेरे बेटे कहाँ हैं। अल्लाह लानतुल्लाह अलैकुम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन यनक़लबून। मेरे मालिक, मेरे खालिक, इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरे मालिक, सुनने वाले सामीन, देखने वाले नाजरीन, करवाने वाले मोमिनीन, सैयद इंतजार शाह साहब, मेरे मालिक इन तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमा। मैं मौला अली के कदमों में बैठ के दुआ गो हूँ, मेरा मौला तुम्हें आले मोहम्मद के अलावा किसी का मोहताज ना फरमाए। मेरा मौला अपने खजाने से बेपनाह रिज़्क़ अता फरमाए। जो बीमार हैं बिलखसूस जनाब सब्तैन साहब, जो मोमन हैं बीमार हैं, मेरा मौला आज की शब का सदका उन्हें सेहत कामिल व आजिला नसीब फरमा। सैयद के बेटों को रोशन
मुस्तकबिल अता फरमा। मेरे मालिक के खानवादा ख़ानदान की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिनीन व मोमिनात आबाद हैं इनकी परेशानियाँ दूर फरमा। हर दुख तकलीफ़ को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। मेरे मौला जो तड़प रहे हैं उन्हें करबला बुला। जो सिसक रहे हैं उन्हें करबला बुला। मेरे मालिक हर करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक हमारे इंतसार शाह साहब को अपनी औलाद बच्चों समेत जल्द अज जल्द हुसैन मौला की दहलीज का सजदा नसीब फरमा। मौला की दहलीज की ज़ियारत नसीब फरमा। इन गलियों से गुजरे जहाँ से अली की बेटियां बगैर चादर की गुजरी हैं, मेरे मालिक इन गलियों की ज़ियारत नसीब फरमा। कायम के ज़ुहूर में अजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले